Welcome to class 5th and subject is social studies. Students, today we are going to start a very important topic. It's very interesting also. See the board here, prairies, grassland. So this is the name of the chapter. Let's see what is prairies. This is the chapter number 7. The name of the chapter is written here, the prairies, temperate grassland. First of all, students, you must know what is the meaning of the prairies. Okay, so I am giving a very brief introduction of the prairies. You must have heard about the different type of vegetation. आपने सुना होगा कि अलग अलग तरह की vegetation होती है हमारे पास. कई बहुत बड़े पेड़ होते हैं, बहुत long trees होते हैं, short trees होते हैं, and at some places there are herbs and shrubs, but at some places there are only grasses. The area which is having the grasses they are known as grassland. So prairie is the name of a grassland. Actually prairie क्या है? एक grassland का नाम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा grass होती है. See the picture here. Okay, this is the grassland and name of the grassland is prairies. Now see, prairies actually कहाँ पे हैं? These grassland of the world are found in the temperate zone. Okay, we will discuss here what is the temperate zone. यहाँ पे टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हाई होता है ना बहुत ज़्यादा लो होता है. मतलब यहाँ पे जो टेम्परेट जोन है यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ही अच्छा होता है. See the location. Okay, I am going to show this by the map. See this world map very carefully. The green color, this green color, it depicts the different type of grassland. ये पूरे वर्ल्ड में different type की grassland है. And we will discuss this one, prairies. नॉर्थ अमेरिका में है ये prairies. तो कहाँ पे इसकी लोकेशन है? जो हमारी लैटिट्यूड है स्टूडेंट्स, जैसे 0 डिग्री पे इक्वेटर, 23 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन 66 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल. ये हमारा नदरन हेमिस्फीयर है. और इसी के अलावा साथ में नीचे जो साउदर्न पार्ट है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल जो साउथ में है, इनके बीच के जो एरिया है, मीन्स जो ट्रॉपिक्स के और आर्कटिक सर्कल के बीच के एरिया है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं. एंड ऑल द ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन. ये टेम्परेट जोन नॉर्थ और साउदर्न दोनों पार्ट्स में अवेलेबल है. ओके, सो नाउ सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड इन डिफरेंट कंट्रीज. हर कंट्री में ग्रासलैंड होती है, उनकी टाइप और उनके नेम डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उसका नाम होगा प्रेरीज, जो हमारा आज का टॉपिक है. स्टेपीज है रशिया में. पेम्पास साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड है. वेल्स इज द नेम ऑफ द ग्रासलैंड इन साउथ अफ्रीका. एंड डाउन्स, दिस इज द नेम ऑफ द ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया. So students, जो हमारा टॉपिक है आज का, that is only first part, prairies in the North America. So answer me in the comment box, where are the prairies? These are found in North America. Now see the location. This is the map of America. In the world, I am showing you this is America. See the cursor students, watch it very carefully. You may know where is the location. In this world map, this is the North America. Okay, I have zoomed the map in this side. This is the colored map, North America. The green color, brown color and red color. These are different types of grass. The red color shows the tall one grass, जो बहुत long होती है grass. और जो हमारा brown color है, light सा ये brown, ये हमारी mixed grass है. इस पे long भी हो सकते हैं, short भी हो सकते हैं. और ये green color का area, it is having the short type of grass. तो ओवरऑल ये हमारी क्या है? दिस इज प्रेरीज. नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में ये प्रेरीज है हमारी. नाउ सी द प्रेरीज, इसकी लोकेशन हमने देख ली है. वेयर इट इज इन द नॉर्थ अमेरिका. इट ऑल्सो इंक्लूड द साउदर्न पार्ट ऑफ कनाडा एंड सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स. कहाँ पे है? मेन है ये नॉर्थ अमेरिका में है. दूसरे कुछ इसके साउथ के पार्ट जो कनाडा में है, साउथ पार्ट, वहाँ पे भी ग्रासलैंड्स है. और यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या है? वहाँ पे भी ग्रासलैंड है. ये हमारा ये शो कर रहा है मैप. ओके, अब वहाँ के लैंड फीचर्स देखते हैं स्टूडेंट्स. वहाँ के प्रेरीज में लैंड कैसी है?
जो वेस्टर्न पार्ट है, इस साइड में वेस्टर्न पार्ट है, वो क्या है, हिली एरिया। यहाँ पे ये हिली एरिया और यहाँ पे रिवर्स है मिसिसिपी एंड मिसूरी। यहाँ पे दो रिवर है, मिसिसिपी एंड नेक्स्ट वन इज द मिसूरी रिवर. This is the Missouri river. And see students, see the picture. It is very beautiful picture. See here, along the river side, the grasslands are shown here. Okay. So name the two rivers, Mississippi and Missouri. These are the two rivers found in the grasslands. Now let's discuss which type of climate is there. Climate of the region is, it is in winter it is very cold and dry. In summers it is very hot and moderate rainfall. Moderate means ना बहुत ज़्यादा होती है सीवर रेनफॉल है, ना ही बहुत कम है. तो रेनफॉल है मॉडरेट है, मीडियम रेनफॉल है, दैट इज 50 to 70 सेंटीमीटर. तो जो यहाँ पर क्लाइमेट है स्टूडेंट्स, जो प्रेरीज ग्रासलैंड का क्लाइमेट है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. यहाँ पे हॉट विंड चलती है. जब स्प्रिंग सीजन होता है तो बहुत गर्म हवाएं चलती हैं. हॉट विंड का नेम क्या होता है, चिनूक. चिनूक इज द हॉट विंड दैट ब्लोज इन द स्प्रिंग सीजन. नाउ सी द वेजिटेशन. ज़्यादातर यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, तो लॉन्ग ट्रीज तो बिल्कुल नहीं होते यहाँ पे. ऑलमोस्ट दिस इज अ ट्री लेस एरिया. ओके, ट्रीज बहुत कम है, वो भी कहाँ पे होंगे, रिवर साइड के आसपास. एंड द वेस्टर्न पार्ट इसका हिली पार्ट है एंड इट इज यूज फॉर द कैटल ग्रेजिंग. यहाँ पे जो पशु हैं वो चरवाए जाते हैं, कैटल की ग्रेजिंग होती है. बिकॉज जो ग्रासलैंड है दे आर बेनिफिशियल फॉर द कैटल्स. और इसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मेज की कल्टीवेशन होती है, और जो सेंट्रल एरिया वो फर्टाइल एरिया, वहाँ पे भी कल्टीवेशन होती है वीट की. सेंट्रल में इतनी वीट की जो कल्टीवेशन है, इतना ज़्यादा वीट ग्रो होता है. सो प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज द ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड को ये वीट सप्लाई करते हैं, सो इट इज नोन एज ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड. नाउ सी फार्मिंग. वहाँ के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग. अब देखते हैं स्टूडेंट फार्मिंग यहाँ पे कैसी है. फार्म का जो साइज है, खेती के लिए जो फार्म्स है वो बहुत बड़े हैं और एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है, बड़े लेवल पे फार्मिंग होती है. एंड दे ऑक्यूपाई द हंड्रेड्स ऑफ द एकर्स ऑफ लैंड. बहुत ज़्यादा बड़े फार्म्स हैं, इतनी 100 एकड़ लैंड का एरिया वो ऑक्यूपाई करते हैं. एंड फार्मिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड साइंटिफिक मेथड एंड विद द न्यू फर्टिलाइजर. ओके, तो नई नई खाद है, फर्टिलाइजर है, मशीन्स हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करती है. नेचुरली जो इसकी प्रोडक्शन होगी बहुत ज़्यादा होगी. सो वीट की इतनी प्रोडक्शन होती है. दिस इज ऑल्सो नोन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. इसके अलावा और भी क्रॉप्स होती है स्टूडेंट्स, जैसे मेज, बार्ले, राइस एंड ओट्स. बट इनकी जो फार्मिंग है वो इंटेंसिव है, मतलब वो छोटे फील्ड में होती है. वीट की फार्मिंग जो है एक्सटेंसिव फार्मिंग है, जो बड़े खेतों में होती है. तो इस बात को मिक्स नहीं करना. वीट इज ग्रोन एट द higher level, it is done with the extensive method of farming and other crops intensive method. दोनों में साइंटिफिक मेथड यूज होते हैं, बट फार्म का जो साइज है इंटेंसिव में थोड़ा सा कम है और जो एक्सटेंसिव है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े फार्म्स हैं. ओके, यहाँ पे जो सोयल है बहुत फर्टाइल सोयल है स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ की जो सोयल है उसका नाम है जेरोन्जिल. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो लोग हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर ही करेंगे क्योंकि ग्रासलैंड्स है. और जो वहाँ पे लोग हैं वो कौन से लोग हैं, जो यूरोपियन डिसेंडेंट्स हैं, मतलब जो यूरोपियन पीपल के पुश्ते हैं वहाँ पे. ओके, वो लोग यहाँ पे सेटल हैं और उनका काम है टू ग्रो द क्रॉप्स एंड रियर द लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक मीन्स कैटल्स लाइक काउ, बफेलो, शीप्स, गोट्स. तो बिकॉज यहाँ पे ग्रेनरीज भी हैं, वीट भी है, उसकी क्रॉपिंग भी होती है, और साथ में लोग क्या करते हैं, कैटल रियरिंग, पशु पालने का काम भी करते हैं. नाउ सी, अब जो कैटल रियरिंग है, हिली एरिया में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कैटल रियरिंग का काम करते हैं. तो उनके पास जो कैटल्स को पालने के लिए जो फार्म हाउस हैं उनको रेंचेस बोलते हैं. रेंचेस आर द एनिमल फार्म्स, जहाँ पे कैटल्स को रियर किया जाता है, पशु पालन होता है जहाँ पे, उसको रेंचेस बोलते हैं. मेनली वहाँ पे काउज है. ओके, काउस आर रियर्ड फॉर द मिल्क. वो मिल्क प्रोडक्ट्स देती है, उनको मिल्क है, बटर है और मिल्क की बहुत सारी प्रोडक्ट्स है. और इसके अलावा बाकी के जानवर हैं
वो यूज़ होते हैं उनके लिए मीट के लिए। तो वहाँ पे एक स्पेशल क्वालिटी है मीट की, उसको बोलते हैं बीफ। बीफ इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ अमेरिकन। और सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स की किलिंग होती है मीट के लिए, इसको बोलते हैं स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग मीन्स टू किल द एनिमल्स फॉर द पर्पज टू हैव द मीट। तो ये जो सेंटर है स्लॉटरिंग का, एनिमल को किल करने का सेंटर है, दैट इज एट शिकागो। तो बहुत सारे रीज़न है यहाँ पे, और भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, क्योंकि वीट बहुत होती है तो फ्लोर मिल्स हैं, जैसे आटा चक्की है। मीट बहुत होता है तो मीट पैकिंग का काम है, ऐसी इंडस्ट्रीज है। तो दीज आर फेमस इंडस्ट्रीज इन द प्रेरीज। नाउ सी द पिक्चर ऑफ रेंचेस, जहाँ पे बड़े जो फार्म हाउस होते हैं, यहाँ पे कैटल्स को रखा जाता है, उनकी रियरिंग होती है, पशुपालन का जो काम है, बिकॉज यहाँ पे ग्रासलैंड बहुत इजीली अवेलेबल है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द क्विज जोन। अभी तक आपने जो सीखा, गेट रेडी टू गिव द आंसर। ओके, आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस। अभी हमने प्रेरीज पढ़ा है, प्रेरीज ग्रासलैंड का नेम है। सो ये रीजन प्रेरीज कहाँ पे है? बिटवीन द 23 डिग्री एंड 66 डिग्री इन द बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर। वर्ल्ड के दोनों हेमिस्फीयर में है। इज इट? कौन सा आंसर होगा इसका? बी पार्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड इसको बोलते हैं। सेकेंड है आपका रेंच। व्हाट इज रेंच? रेंच इज अ एनिमल फार्म। थर्ड वन, मिसिसिपी रिवर बिलोंग्स टू द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। Number 4, farmers in United States practices extensive farming. Number 5, the areas away from the path of rain is rain shadow area. Means यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती, सिर्फ बादल उस रास्ते से निकलते भी नहीं है, वो एरिया उनसे बहुत दूर होता है, क्लाउड से, और रेन लोडन क्लाउड्स होते हैं जो, तो वहाँ से दूर होते हैं, उसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। यस, अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स। यू हैव टू मार्क ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। द वेरी फर्स्ट इज देयर आर नो ट्रीज इन द प्रेरीज। ट्रू, very less trees. And the grassland have different names in the different continent. Yes, true. Farmers in the prairies have small farms. False. Wheat is a food crop of USA. Yes. Number 5, temperate zone lies only in the northern hemisphere. No, it lies both in the northern and southern hemisphere. So statement 5 number is false. Next student, fill the blanks. The very first is dash settler converted the grassland into the farmlands. कौन से settler है? European. Second number is the prairies have few trees and bushes. Number 3, the prairies are called the wheat basket of the world. Number 4, hot winds called Chinook and they blow during the spring. Number 5, Chicago is an important center for slaughtering the animals. I have already told you slaughtering means to kill the animals for the purpose of meat. Now students, move to the next. Next one is match the following. I already have solved the match words. There is the name of the grassland. See the cursor. These are the name of the grassland on one side. On the other side, you have to match these grassland with the areas or countries. Okay, steppes are found in Russia, prairies are found in North America, pampas South America, veld South Africa, down Australia. These were the name of the grasslands. Now students, come to the next topic. These are the question answer. The very first question कि इसकी लोकेशन का है, ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन बिटवीन 23 डिग्री एंड 66 डिग्री इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर्स. Second answer, name the two rivers. Mississippi and Missouri are the rivers which flow through the prairies, that is in United States of America. Third, prairies are called the wheat basket because wheat is produced in a large quantity. You also can write wheat is produced at an extensive level. Fourth answer students, see the fourth answer.
The word ranches means. Ranches means estate or a farm where cattle are reared. Cattle farm को ranches बोलते हैं. Agriculture and cattle rearing, these are the two major occupation of the people of prairies. And student, last one is the activity. You have to write your views on your notebook on the topic of slaughtering animal killing. Okay, is it good or bad? You have to write your own views within 50 words. Okay students, I hope you must have understood the topic. Yes, what was the name of the topic? Prairies. And what were the prairies? These were the name of the grassland. तो आज का हमारा टॉपिक था prairies. ये हमारी नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड का नेम है. Hope you must have enjoyed the topic and all the concepts must have clear to you. And I again suggest you as usual to watch the video till the end. Repeatedly watch it. And thank you students for being here. Soon we will be there with the new topic. Till that, stay fit, stay fine.